सरस्वती माता एवं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण का मालापन कर टीचर्स डे का आरंभ करने जा रहे हैं। Please give a big round of applause. We would like to call Ajitesh for Saraswati Vandana. शारदे माँ अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर्ग की देवी है, संगीत तुझसे हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको भी अधिकार दे माँ। हे शारदे माँ अज्ञानता से हमें तार दे माँ। Good evening to all our respected teachers, director sir and our chief guest. I'm Richard Vora and today we all are gathered here to be a part of this marvelous event. On the occasion of 5th September, that is Teachers' Day, we'd like to mark the importance of a teacher in our life. It is well said that a teacher is a compass that activates the magnet of curiosity, knowledge and wisdom. All our teachers have worked so hard for shaping us into the students we are today. We are highly obliged to all our teachers. In order to present our gratitude, we all have prepared and tried our best to showcase our performances. Now, we'd like to call Rishika Dubey along her speech for teachers to present our gratitude towards them. Hello everyone, my name is Rishika Dubey and today I am here to speak of this day. We all know that we celebrate Teachers' Day on 5th of September every year. And we should celebrate Teachers' Day by respecting our teachers every minute, every hour and every second of our life. Wholeheartedly. Miss India. We cannot forget our teachers after being successful in our life. Because the only intention of our teachers is to see us as a successful person in our lives. They do not want anything else. So why can't we fulfill their wills, which is also ours? We all want to become a successful person in life. So why can't we do it? And yes, parents. How can I forget about parents? Parents are our first teachers. They taught us how to sit, to how to run. We cannot forget about Teachers' Day. In word teacher, T is for trust, A is for empowering, A is for amazing, C is for caring, H is for honest, E is for encouraging, R is for radiant. There is nothing that we can forget about teachers because they are the best people ever. Our teachers and parents are the only person who want to see higher than them. If we follow them and respect them, then trust me, you will never ever get successful in your life. So promise me that you will always try to respect your teachers and always try to follow their guidance. At the end, I want to conclude with Happy Teachers' Day. Thank you. Soumya of class 9 wants to mark some precious words through her poem for teachers. On this very special day, a note of thanks has been sent your way.
very special day, a note of thanks I'm sending your way to express my heartfelt greetings to someone who is more than just a teacher. You have been there in my dark days, leading me gently through the way, pulling my ship to the shore when the storms and the seas were at the road. For the guidance and love you showered. Thank you, teacher, today and forever. Thank you so much, Shaurya. Let's call Aniket Katyar for his grateful speech. Myself, Aniket Katyar from class 10. I am studying in this institute from last 4 months, and the whole faculty, including the director sir, Yogen Singh, my science teacher Shubham Gupta, maths teacher Sandeep Nagai sir, and history teacher Sushant Pandey sir, has helped me a lot in clearing all the doubts in all the subjects. And I hope under their guidance and mentorship, at the final exam, I will have a good result and score excellent marks. Thank you and happy Teachers Day to everyone. Pransh Pathak of class 9 is willing to present his fluent and expressive speech in front of us. Very heartfelt welcome to all our respected teachers and my fellow friends. Today we are here lined up for enjoying all activities and programs regarding Teachers Day. On 5th September, Teachers Day is celebrated as the birthday of Mr. A. Sarvapalli Radhakrishnan. Teachers give their time, energy and work to their pupils to make a best future for their students. They can see and remove all the stumble blocks in our path of success. Therefore, I salute all of them. Lastly, I would like to tell a quote to all the teachers. The teachers are like the candles which consumes itself for light and all the way of others. Thank you so much. Happy Teachers. Good evening, Honorable Chief Guests, teachers and all my dear friends. My name is Priyanshli Rawat and I am a student of class 9. Today we all are here to celebrate the Teachers Day. Firstly, I would wish you all a very happy Teachers Day. We celebrate Teachers Day on 5th September as a birthday of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. He was a great philosopher, teacher, and he dedicated all his life to the teachers. Teachers have the ability to shape the millions of students' future, and I can undoubtedly say that the teachers are the backbone of the society, and teachers plays a very important role in every student's life. So I am so thankful to God that I have teacher like Sandeep sir who teaches us very well and supported us whenever we need. So on the behalf of all the students, I would like to thank all the teachers in our society for their effortless work to make our future bright. Thank you and once again Happy Teachers Day. टीचर्स दिवस के इस अवसर पर हमारे सभी बच्चों, हमारे सभी टीचर्स और हमारे आए हुए सभी गेस्ट का बहुत बहुत अभिनंदन है, क्योंकि आज टीचर्स डे है और हमारे अधिकतर टीचर्स अभी स्कूल में ही हैं, वहाँ पर भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं और कुछ ऐसे प्रोग्राम हैं जो अभी रिसेंट मतलब फिर स्टार्ट होने वाले हैं। तो हमारे टीचर्स का हम ज़्यादा समय नहीं लेना चाहेंगे। इसी बीच में हम अपने हमारी जो मैम हैं प्रीति दीक्षित जी, उनको हम यहाँ पर इनवाइट करते हैं और हम चाहते हैं कि वो स्टेज पर आएँ और हमारे बच्चों को अपने जो कुछ एक्सपीरियंस हैं, मैम के बारे में थोड़ा मैं बताना चाहूँगा। ये मैम कौन बनेगा करोड़पति में पार्टिसिपेंट कर चुकी हैं और वहाँ पर कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा, इसके बारे में वो आपसे कुछ बात करेंगी और आपको जो नॉलेज देंगी उनको आप अच्छे तरीके से समझिए और जो गलतियाँ होती हैं उन गलतियों को ना करके आप अपनी लाइफ में सक्सेस प्राप्त कर सकें। इसके संबंध में मैम आपको कुछ जानकारी देंगी। Good evening and very happy Teachers Day to Director Sir, Ma'am and all respected teachers to present here and all my dear students. अभी हमारे बच्चों ने बहुत सारी टीचर्स डे के विषय में हमें यहाँ बैठे बैठे स्पीचेस में इंफॉर्मेशन दी, वो आप सब लोगों ने सुनी है और हम सब जानते हैं कि इस टीचर्स डे का क्या इसका महत्व है या इम्पोर्टेंस है। टीचर्स एक्चुअली मेरा मानना ये है कि हर वो व्यक्ति हमारे लिए टीचर है जो हमें कुछ ना कुछ सिखाता जाता है, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हों, हमारे एल्डर्स हों, और टीचर तो ऑफ कोर्स टीचर को तो वो दर्जा दिया गया है कि जो हमारी लाइफ बनाते हैं। कहते हैं टीचर एक कुम्हार की तरह है जो घड़े को पीट पाट कर उसको एक सही शेप देता है, और नॉलेज वो ताकत है जो हमें हर जगह हमारी पहचान, जो हमारी सेल्फ कहते हैं ना कि हर कुछ भी हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कलेक्ट करें, वो पैसा हो, मनी
कोई प्रॉपर्टी हो, वो सब ऑलवेज़ हमारे साथ नहीं रहती, लेकिन हमारी एजुकेशन, हमारा नॉलेज, हम कहीं भी जाएं वो हमारे साथ रहता है और उसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है उसे देने का हमारे टीचर को। इसीलिए हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि टीचर का जो स्थान है वो भगवान से भी बढ़कर है। हम सब एक श्लोक पढ़ते हैं ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, वो सिर्फ इसीलिए कहा जाता है कि एक कहानी थी, शायद आप सब जानते होंगे कि एक भगवान की तलाश में निकले थे एक महात्मा जी, एग्जैक्टली मुझे उनका नाम नहीं पता, तो वो ढूंढते ढूंढते भगवान को ढूंढ रहे थे, भगवान उन्हें मिले लेकिन वो भगवान को नहीं पहचान पाए। जब उनके गुरु ने बताया कि यही भगवान है, तो उस दिन से ये श्लोक प्रचलित हुआ कि बिना गुरु के हमें नहीं पता कि क्या चीज़ पत्थर है और क्या सोना है। तो टीचर्स का हमारी लाइफ में बहुत योगदान है और ऐसा नहीं है कि टीचर एक टाइम के बाद उनकी इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाती है। जैसे हम टीचर्स हैं तो हमें भी किसी ना किसी की नीड है, कोई ना कोई हमें हमारा मार्गदर्शन करने के लिए चाहिए, चाहे वो जैसा कि मैंने कहा हमारे पेरेंट्स जो सबसे पहले हमारे टीचर हैं, और आई थिंक वो लास्ट तक जब तक हमारी लाइफ में रहते हैं वो एक टीचर का रोल ऑलवेज़ निभाते रहते हैं। तो आप सबसे मेरा ये कहना है कि हमेशा अपने टीचर्स का, अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करिए और जो भी वो आपको बताते हैं या सिखाते हैं उनको जहाँ तक हो सके फॉलो करिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको लाइफ में बहुत काम आने वाला है। अब जैसा कि सर ने बताया कि मैं करोड़पति की एक कंटेस्टेंट रही हूँ, तो उसके रिगार्डिंग में बस इतना कहना चाहूँगी कि आप लोग अपनी लाइफ में जो भी गोल डिसाइड करिए, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। आप बस एक चीज़ पे एक अपने लाइफ में गोल जो भी डिसाइड आप करते हैं, उस गोल के लिए आप अपना सब कुछ लगा दीजिए। ये मत सोचिए कि फेल्योर हो रहे हैं या हम उस तक नहीं पहुंच पाएंगे या हमारे अंदर पोटेंशियल नहीं है, इन सब चीज़ों को मत दिमाग में लाइए। पूरे मतलब 100% देकर अपने गोल की ओर आगे बढ़िए। अब एक चीज़ और मैं आप सब बच्चों से कहना चाहूँगी, इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, बहुत से ऐसे होंगे जो टॉपर्स होंगे और बहुत से ऐसे होंगे जो 50 मतलब हाफ वे को भी क्रॉस नहीं कर पाते होंगे। तो आप लोग एक चीज़ ये मानिए कि सबके अंदर पोटेंशियल है और एवरीवन, सभी जितने भी बैठे हैं सब नंबर 1 पहुंच सकते हैं। बस होता क्या है कि किसी के अंदर 100% नहीं होता, किसी में 80% है तो किसी में 20% है। 80% वाले को केवल 20% ही मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन 20% वाले को 80% मेहनत करनी पड़ती है और सभी 100% हो सकते हैं। तो इस चीज़ को आप याद रखिए। बाकी जो कौन बनेगा करोड़पति है उसके विषय में आपको बस इतना कहना चाहूँगी कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, ये ओनली मेरे हिसाब से एक अपॉर्चुनिटी है जो हम अगर चाहें, अगर है एक लक बेस्ड एक गेम है जो जिसके लिए आप अगर ट्राई करते हैं तो शायद आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। लेकिन इन सबसे बड़ी जो अपॉर्चुनिटी है वो है आपका नॉलेज। अगर वो आपके पास है तो एक करोड़पति नहीं, कई करोड़पति मतलब आप बन सकते हैं। एक करोड़पति एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, आपके पास अगर जेन्युइन नॉलेज है तो आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो सिंपली बस यही मैं कहना चाहूँगी आपसे कि आप सबसे पहले आप बच्चे हैं, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में कभी नहीं आएगी। और करोड़पति से जो मैं सीख के आई हूँ वो 3 चीज़ें हैं, वो आपको मैं बताना चाहूँगी। सबसे पहले कि नॉलेज इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, और वो आप जितना हो सके, जहाँ से हो सके आप उसको गेन करते चलिए। सेकंड थिंग ये है कि टाइम इज़ वेरी वैल्यूएबल। आपसे कहा जाता है ना, आप कहते हो 2 मिनट 4 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट, तो वहाँ एक सेकंड में आप अपना गोल्डन चांस गुम कर सकते हैं। तो एवरी सेकंड की वैल्यू करना सीखिए, वो टाइम दोबारा आपके पास नहीं आएगा। और तीसरी चीज़ क्या है कि तो अपना जो भी मौका आपको मिलता है, जो चांस मिलता है, उसको कभी मिस मत करिए और अच्छे से मेहनत करिए, बहुत अच्छे से मेहनत करिए, अपने टारगेट पे फोकस करिए। जब तक आपका गोल अचीव ना हो जाए पूरा आप अपना 100% उसको दीजिए। एंड लास्ट अगेन मैं ये कहना चाहूँगी कि इस टीचर्स डे पे आप सबको बहुत बहुत बधाई। खूब पढ़िए और सब के सब इस इंस्टीट्यूट का नाम आगे बढ़ाइए और सब के सब 100% स्कोर करिए अपने स्कूल्स में, अपने कोचिंग्स में। और इस इंस्टीट्यूट के साथ साथ बाहर जब नेक्स्ट टाइम हम मिलें तो यहाँ कम से कम आपकी फ़ोटोज़ लगी हों और आप 90+ सारे स्कोरर बने।
and thank you. आज हम लोगों का बहुत ही सौभाग्य है कि हम लोगों के बीच में ऐसे ऐसे महान लोग बैठे हुए हैं जो हम लोग कभी सोचा नहीं था कि हम लोग इन लोगों की स्पीच सुन पाएंगे। अगर हम इन लोगों की स्पीच सुनने के लिए जाते हैं तो हम लोगों को पैसे देने पड़ते हैं। आपने देखा होगा कि काफ़ी मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं और जब आप उनकी मोटिवेशनल स्पीच को सुनने के लिए जाते हैं तो आपको पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को इस तरह की चीज़ें फ्री में मिल रही हैं। तो आप लोग हमारे टीचर्स के जो भी स्पीच है उसको ध्यानपूर्वक सुने और जो भी उनकी अच्छी चीज़ें हैं उनको आप अपने अंदर लें और लाइफ में ऐसा काम करें जिससे आपको अच्छी सक्सेस मिल सके। तो इसी कड़ी में हम आप लोगों के समझ अपने सुनील सूर्या सर को इनवाइट करना चाह रहे हैं। इनके बारे में 2 चीज़ें मैं बोलना चाहूँगा कि ये हमारे सर समाज सुधारक हैं। ठीक है, आज के समय में देखिए टीचर तो सभी लोग बन जाते हैं, लेकिन मेन चीज़ क्या है कि समाज को अच्छी चीज़ें सिखाना, अच्छी रास्ताएं बताना। ठीक है, और इसके साथ में सर ने कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी लिए हैं। ठीक है, और हम लोग बहुत ही एक तरीके से सर यहाँ पर हमारे इंस्टीट्यूट में पधारे, इसके लिए हम लोग बहुत ही शुक्रगुजार हैं। मैंने सोचा नहीं था कि सर टाइम निकाल पाएंगे, लेकिन सर ने किसी तरह से टाइम हम लोगों के बीच में निकाला और हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं। तो ऐसे महान विभूति के समझ हम लोग उनकी एक एक बात को बहुत ही गंभीरतापूर्वक सुने और उनको अपने लाइफ में इस तरह से सीखें कि हम लोग आगे बढ़ सकें। तो हम लोग तालियों के साथ में सुनील सूर्या सर को इनवाइट कर रहे हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं आप सभी, और हमें आपके सामने आने का मौका मिला, मिलने का मौका मिला। मैम को मैंने सुना। मैं मेमोरी गुरु सुनील सूर्या और मेरे नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड है और मेरा एक यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड है 99 अरब ईयर्स कैलेंडर याद करने का। और मेरा एक मिरेकल वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो ताश के बत्ते के बराबर है। मेरा कैलेंडर वो इन्फिनाइट ईयर्स का है। और मेरा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड और है कि मैं इंटरमीडिएट की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 12 घंटे में बच्चों को याद कराता हूँ, जो पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं कराता है। तो इसके लिए अभी 17 तारीख को मुझे राष्ट्रीय धरोहर सम्मान प्रतापगढ़ में डिप्टी सीएम सम्मानित कर रहे हैं हमको। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, टाइम ही आपका गुरु है, समय ही आपका सब कुछ है और हर किसी का समय बहुत कीमती है। मैं प्लीज़ डोंट स्पीक, कृपया बात ना करें, प्लीज़ बात ना करें। सर ने बताया मैं बहुत कॉस्टली हूँ, रियली मैं बहुत कॉस्टली हूँ। मैं 12 घंटे का 12,000, 25,000, 50,000 रुपये लेता हूँ। तो बहुत प्यार से सुनिए मुझे। मैं बीमार था, मैं अभी जौनपुर में प्रोग्राम करके आया हूँ। सर ने मुझे बोला नहीं, मैंने कहा नहीं मैं जाऊँगा। मैं अभी भी बहुत अच्छा फील नहीं कर पा रहा हूँ, बट मैं अगर किसी से वादा करता हूँ तो उसे पूरा भी करता हूँ। तो आप मुझे ध्यान से सुनिए। आप अगर टाइम को मैनेज नहीं कर पाए तो आप लाइफ को मैनेज नहीं कर सकते। और जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं, छोटे से बच्चे, जो छोटे बच्चे भी हैं, इतने छोटे बच्चे भी और इतने छोटे बच्चे भी जो आजकल वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं। आजकल टेलीविजन में आप देख रहे हो टैलेंट कितना है लोगों के पास, और जो टाइम है वही मनी है। जो आप पढ़ते हो रियल में वो पढ़ते नहीं हो, वो पैसे कमाते हो। आपका एक एक शब्द, एक एक टॉपिक, वो सब पैसे हैं, लेकिन वो अंडरस्टूड है। अगर तुरंत आपको कोई कहे कि एक पेज याद करना है और आपको हम 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये दे रहे हैं, तो आप याद कर लोगे। लेकिन वही आपको 6 महीने बाद एग्जाम देना है, साल भर बाद एग्जाम देना है, तो आप याद नहीं करोगे। हमारा स्टूडेंट एक है IIT में, इस बार उसका 98.77 परसेंटाइल है IIT मेंस में, और एडवांस में भी वो बहुत अच्छी रैंक से सिलेक्ट हो जाएगा। और केमिस्ट्री मैंने पढ़ाया तो 99.21 परसेंटाइल है उसका केमिस्ट्री में।
तो यहाँ पर बैठा कोई भी बच्चा क्या कर सकता है ये कोई नहीं जानता, और आप क्या कर सकते हैं हो सकता है आपको ना पता हो। मैं एक मोटिवेटर हूँ, मैं फेस रीडर भी हूँ, मैं काउंसलर हूँ, और 400 विद्यालय 6 स्टेट में लगभग 2 लाख बच्चों को मैं मोटिवेट कर चुका हूँ, सेमिनार दे चुका हूँ। और मैं इस तरह नहीं पढ़ाता, जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं गारंटेड पढ़ाता हूँ। मैं जो पढ़ाता हूँ मेरे पढ़ाने मात्र से ही बच्चों को याद हो जाता है। तो सोचो मैंने कितनी मेहनत करी होगी। पहले इस चीज को आप सोचिए, मैं इंटर में पढ़ता था तो इंटर के बच्चों को फीस पढ़ाता था, फिर थोड़े दिन बाद मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों सब्जेक्ट पढ़ाता था। तो मेरा मतलब सिर्फ ये है, मैं गांव का रहने वाला हूँ, रायबरेली के छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। मैं आपके CSL यूनिवर्सिटी में लेक्चर में दे चुका हूँ, और जो मेरे पैसे से लेक्चर्स होते हैं, और आप इतने अच्छे जगह पे बैठे हैं और शहर के टीचरों से पढ़ रहे हैं। मैं गांव का लड़का हूँ, सोचिए मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ा हूँ, वो जो लकड़ी की जो पार्टी होती है उसमें पढ़ा हूँ। अब जाके मैं यूनिवर्सिटी में लेक्चर लेता हूँ और कहाँ कहाँ मैं जाता हूँ, कितना मैं पैसा लेता हूँ, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। मेरा मतलब सिर्फ ये है कि अगर आपने अपने गुरु के रिस्पेक्ट, आजकल बच्चा गुरु की रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं करता है, और सबसे बड़ा जो गुरु है दुनिया का वो कौन है पता है? वो आपकी माँ है, और आप अपनी माँ की रिस्पेक्ट भी नहीं करते हैं। मुझे बहुत अच्छी तरह पता है। मैं आपको बताऊं, कोरोना काल में मेरा प्रोग्राम था गाजियाबाद में, मुझे कोरोना हो गया। मैंने कहा अब तो गड़बड़ हो गया, और मैं अपने घर गया रायबरेली। मैं 9 महीने अपने घर पे रहा, और डेली सुबह मैं अपने मम्मी पापा के पैर छूता था, डेली सुबह। और मैं 3 भाई हूँ, तो मेरे बड़े भैया ने कुछ कमेंट किया, छोटे ने किया, लेकिन देखने के बाद बोले कितने दिन हो गए, 1 दिन 2 दिन 4 दिन। जब मैं 9 महीने लगातार करता रहा तो वो सारे लोग, मेरा भतीजा, मेरे भाई लोग भी छूने लगे। मेरा मतलब सिर्फ ये है, आपको कहना नहीं है, आपको करना है। और अगर आप अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट कर सकते हैं और अपने टीचर की रिस्पेक्ट कर सकते हैं, तो यकीन मानिए आप में से कोई छोटा इंसान नहीं हो सकता, सारे लोग बड़े इंसान हो सकते हैं। तो सबसे पहले ताली बजाइए अपनी माँ के लिए, प्लीज क्लैप कीजिए। और मेरा एक क्वेश्चन है आप सभी से, आप बताइए सबसे प्यार किसको करते हैं? किसको करते हैं? मम्मी या पापा या अड़ोसी पड़ोसी, किसी को भी चूज कर लीजिए, किसको करते हैं? चलिए, मैंने आप सबका एक फोटो लिया, ढेर फोटो लिया। उन फोटो में आप भी है, मम्मी भी है, पापा भी है, और कोई जिसे आप प्यार करते हो वो भी है, और मैंने सारी फोटोज यहाँ पे डाल दिया। हमने कहा आपको फोटो पिक करना है, चूज करना है। तो सबसे पहले किसका फोटो चूज करोगे? आपका भी है, उसका भी है, जिसको आप प्यार करते हैं, और मम्मी पापा भी है। किसका फोटो चूज करोगे? बोलो। अच्छा, फिर मैंने क्या किया, आप लोगों ने एक फिल्म बनाई, और उस फिल्म में आप हैं, मम्मी पापा भी है, और वो भी है जिसे आप प्यार करते हो, ज्यादा प्यार करते हो, सबसे ज्यादा। और यहाँ पर उस फिल्म को हमने लॉन्च कर दिया। अब सबसे पहले फिल्म क्या आता है? नाम आता है। अब आपका नाम आ रहा है, उसका भी नाम आ रहा है, मम्मी पापा का भी नाम आ रहा है। सबसे पहले किसका नाम देखना चाहेंगे? बोलो। मम्मी पापा का? अच्छा, अब फिल्म में चित्र आना शुरू हो गए, तो सबसे पहले किसको देखना पसंद करेंगे? अपने को, आपको, मम्मी या पापा को, किसी और को? बोलो। किसको? आप सब बहुत अच्छा झूठ बोल रहे हैं। और कैसे झूठ बोल रहे हैं मैं बताता हूं आपको। कोई मम्मी पापा को प्यार नहीं करता, कोई नहीं करता। पता है, अगर किसी को किसी लड़की से मोहब्बत हो जाए ना, तो मम्मी पापा को नहीं देखता है, उस लड़की का हाथ पकड़ता कहता चल। और किसी लड़के को अगर प्यार हो जाए किसी से,
किसी लड़की से क्या आएगा, छोड़ो मम्मी पापा को चलते हैं, फिर मम्मी पापा को कहा जाते हैं। बोलो, कभी पढ़ा आपने कि किसी को मम्मी पापा ने अपना घर छोड़ दिया हो? बोलो, कभी पढ़ा? कभी नहीं पढ़ा। किसी ने भी माँ बाप के लिए कभी कुछ नहीं किया। हमेशा पढ़ते हैं कि एक लड़की एक लड़के ने फांसी लगा ली, सुसाइड कर लिया, एक लड़का एक लड़की के लिए भाग गया, एक लड़की भाग गई। कभी सुना किसी ने माँ बाप के लिए कुछ किया हो? आप सब चुप कहते हो गए, क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है, किसको आप प्यार करते हैं? आपको नहीं पता किसको प्यार करना है। सब प्यार किए जा रहे हैं, सब दिल दिए जा रहे हैं, किसी को नहीं पता किसको देना है। लव योरसेल्फ। सबसे ज्यादा हम अपने आप से प्यार करते हैं। कोई किसी से प्यार नहीं करता, दुनिया में कोई किसी से प्यार नहीं करता। आई कैन प्रूव इट। सब अपने आप से प्यार करते हैं, और जिससे कह रहा है कि मैं प्यार करता हूं, उससे जो ये प्यार नहीं करते, उसमें अपने आप को खोज रहे हो। यू आर नॉट कंप्लीट योर सेल्फ। जब उसमें आप अपने आप को खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, मैं उसमें हूं कि नहीं। आप कहते हैं मैं तो आपके जैसा हूं, मैं तो आपकी जैसी हूं, मेरे नेचर तो आपसे मिलते हैं, मैं कितना सिमिलर हूं, इसलिए मुझे आपसे प्यार हो गया। बट वो प्यार नहीं है, आप खुद डिस्टर्ब हो रहे हैं। समझ रहे हो बात को? नहीं समझ रहे हैं? तो आज का सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है वो ये है, लव योर सेल्फ, लव योर कैरियर, लव योर स्टडी। लर्निंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अर्निंग। जितना आप पढ़ते हैं उतना आप कमाते हैं। अगर आप अपने मम्मी पापा से कह दें कि मैं तो पढ़ाई कर रहा हूं पर नौकरी नहीं करूंगा, तो मेरा दावा है आपके मम्मी पापा कहेंगे कल से पढ़ने मत जाना, क्योंकि पढ़ाई बहुत महंगी हो गई है। बात समझ नहीं समझ रहे? तो क्या करना है? दुनिया में कुछ भी करना, कुछ भी करना, लेकिन सबसे पहले क्या करना है? पढ़ाई करनी है, स्टडी करना। और अगर स्टडी नहीं करेंगे तो जिसे आप प्यार करते होंगे ना, वो भी आपको प्यार नहीं करेगी, और दुनिया में कोई आपको प्यार नहीं करेगा। ये मैं आपको बता रहा हूं, कोई आपको प्यार नहीं करेगा दुनिया में। मैं एक फिलोसोफर हूं, मैं रिसर्च करता हूं, और अनमैरिड, मैंने शादी नहीं करी है। तो मैं आपको बता रहा हूं, मेरी सारी जिंदगी काउंसलिंग में गुजर रही है, पढ़ाई में गुजर रही है, स्टडी में गुजर रही है, और बहुत बड़े बड़े लोगों की मैं काउंसलिंग करता हूं। कोई मुझे रिंग गिफ्ट करता है, कोई चेन गिफ्ट करता है, कोई अंगूठी गिफ्ट करता है। आपके यही मेरे बड़े बड़े क्लाइंट हैं जो IAS PCS लेवल के लोग हैं। कुमार जोशंस का नाम सुना है? उनकी जो गर्लफ्रेंड है, जिनकी वे कविता लिखते हैं, उनकी बीवी ये रिंग है। तो अफसोस में मैं कितना बड़ा काउंसलर हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, आप कृपया बात ना करें दूसरे से, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, लव योर सेल्फ। समझ गए आप? लव योर सेल्फ। और कितनी स्टडी आप कर सकते हो, कितने घंटे आप पढ़ाई कर सकते हो, ये आपको सोचना पड़ेगा। मैं 10 घंटे 12 घंटे पढ़ा हूं और लगातार 7-8 घंटे बोल सकता हूं। अभी मैं जौनपुर गया तो मेरा लेक्चर खत्म हो गया बच्चों में 5 घंटे का। फिर टीचर्स को मैंने जब बोलना शुरू किया तो कोई टीचर्स जा ही नहीं रहा था, मुझे 8 घंटे बोलना पड़ा। फिर 3 घंटे मैंने टीचर को बताया बहुत सारी चीजें। तो मेरा मतलब ये है कि मैं बहुत लकी हूं, मैं आपसे मिल रहा हूं, आप बहुत लकी हैं कि मुझसे मिल रहे हैं, दोनों लकी हैं। तो मेरी बात को बहुत गौर से सुनना। अगर जिंदगी में बड़ा करोगे तो कभी नहीं मुझसे मिल सकते हो, और छोटा करोगे कभी जिंदगी में तो मुझसे नजरें भी नहीं मिला पाओगे। तो अपने टीचर से नजर मिलाने के लिए, अपने सहपाठी से नजर मिलाने के लिए, आप साथ पढ़ रहे हैं ना, अगर आप सक्सेस होंगे तभी आप अपने दोस्त से नजर मिला पाएंगे। नहीं तो कितना भी कर लीजिए,
आप इधर से जा रहे होंगे, वो उधर से मुंह घुमा रहा होगा, आपके कपड़े अच्छे नहीं होंगे। आपके माता पिता भी तो बहुत प्यार करते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े आपको ला कर देते हैं, अच्छा अच्छा खाना ला के देते हैं, और आप कितनी नौटंकी करते हैं, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं खाऊंगी, मुझे तो ये चाहिए, मुझे तो पिज्जा चाहिए, मुझे तो बर्गर चाहिए, चाउमीन चाहिए, माइक्रोनी चाहिए। बहुत नाटक करते हैं आप लोग, करते हैं कि नहीं करते हैं? और सारे नाटक आपके माता पिता, क्योंकि वो आपसे सच में बहुत प्यार करते हैं। जितना माँ बाप प्यार करते हैं उतना दुनिया में आपसे कोई प्यार नहीं कर सकता। जब कभी आप उस लेवल पे जाएंगे तो एहसास करेंगे। तो लव योर मॉम एंड डैड, लव योर पेरेंट्स एंड लव योरसेल्फ। अपने आप से प्यार करिए और इतनी मेहनत करिए कि आप जहां पे बैठे हैं ना, इस मेगा माइंड ट्यूटोरियल को लोग जाने कि आप कहाँ पढ़ते थे। आप पढ़ेंगे, आपका नाम होगा, सर का नाम होगा और आपके मम्मी पापा का नाम होगा। वो लोग आप पे गर्व महसूस करेंगे। मुझे जब कोई अच्छा, मैं रायबरेली में बहुत बड़ा प्रोग्राम किया, रायबरेली में, और न्यूज़ में मेरे घर तक, अभी मेरे पास है, मैं आपको बता दूं, मैं टीवी चैनल में, न्यूज़पेपर में बहुत आता हूँ, जागरण में मेरा इंटरव्यू कई बार आ चुका है। तो जब मेरे गांव में मेरी न्यूज़ पढ़ी लोगों ने तो कितना मतलब सरप्राइज मिले कि मेरे गांव का लड़का है और आज न्यूज़पेपर में, टेलीविज़न में इस तरह करके। तो ये जो रियल आपको खुशी मिलेगी वो कैसे मिलेगी? वो आपकी सफलता से मिलेगी। और सफल आप कब होंगे? जब आप अपने आप को प्यार करेंगे और अपनी स्टडी को प्यार करेंगे, अपनी पढ़ाई से मोहब्बत कर लीजिए, अपने माँ बाप का कहना मानेंगे और प्रॉमिस करिए। आज कितने लोग प्रॉमिस करेंगे कि आज या आज के बाद अपने माँ बाप का कहना मानेंगे, माता पिता का? हाथ रेस करिए और झूठ नहीं रेस करेंगे। कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं, वो लोग सोच रहे हैं कि नहीं करेंगे। अपने माता पिता, आपके माता पिता ही आपके भगवान हैं और आपके माता पिता ही आपके पहले गुरु हैं। समझ रहे हैं? तो आपको आप नीचे कर लीजिए, अपने माता पिता से ही आपको प्यार करना है। और वही यस, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु की तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता, गुरु के बारे में कुछ एक शब्द नहीं कोई बोल सकता है। गुरु ऐसी चीज है, क्या कर सकते हैं गुरु? मेरा एक लड़का है और वो इंटर 3rd डिवीजन था। मैं उसको लाके वीरेंद्र स्वरूप से बीटेक कराया और वहां वो बीए कर रहा था। आज वो बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहा है। मैंने उसकी शादी हुई, मैंने उसकी वाइफ सेलेक्ट किया और मैं उसकी शादी में गया। इतना रिस्पेक्ट उसने किया। आज उसने व्हाट्सएप किया कि सर आपने मेरी लाइफ को बदल दिया। गांव का लड़का आज जाके बड़ी एमएनसी में काम कर रहा है, बड़ा जॉब कर रहा है। तो हमारे पास तो बहुत प्लेस है, हमारे पास तो बहुत स्टूडेंट है, बहुत प्यार करने वाले लोग हैं मुझे। लेकिन सच में अगर आप बहुत अच्छा काम करोगे तो दुनिया में हर इंसान को प्यार चाहिए। दुनिया में किसी को क्या चाहिए लोगों को पता? प्यार चाहिए, रेस्पेक्ट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बहुत पैसे वालों को, मैंने 200 करोड़ लोगों को जिनके पास 200 करोड़ रुपया है, 300 करोड़ रुपया है, वो लोग उससे रोते हैं क्योंकि परेशान रहते हैं। मैं उनकी काउंसलिंग करता हूँ। अपने कानपुर में बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनका आप जानते भी हैं, पर मैं नाम नहीं बता सकता। आपके काका दोगे बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो मुझे जानते हैं, जिनकी मैं काउंसलिंग करता हूँ। आई एम सेइंग दैट की मनी इज नथिंग, मनी इज समथिंग। बट अगर आपको लाइफ में हैप्पी रहना है, आपको बहुत सारा एंजॉय करना है, सर का स्वागत करिए। बैठ जाइए। तो आपको क्या करना है? आपको अपने आप से प्यार करना है, अपनी स्टडी से प्यार करना, अपने कैरियर से प्यार करना है और उसके बाद में अपने माता पिता का रिस्पेक्ट करना है। और आज के बच्चे जो अपने, आपका चाहे स्कूल के कोई टीचर हो, दुनिया में कोई भी टीचर हो, मैं बच्चों से सीखता हूँ, मैं हर किसी से सीखता हूँ। आप पेड़ पौधे से सीखिए, पक्षियों से सीखिए, जानवरों से सीखिए, हर कोई आपको सिखा देगा अगर आप सीखना चाहते हैं तो।
तो कितने आपके गुरु हैं आपको नहीं पता है, मुझे नहीं पता है कि कितने हमारे गुरु हैं, अनलिमिटेड गुरु हैं। तो सबकी रिस्पेक्ट करना है, और सबकी जब रिस्पेक्ट करेंगे वो सभी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे और सभी आपको प्यार करेंगे। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं, और ये सर जो हमारे हैं ये अरमापुर पीजी कॉलेज में प्रिंसिपल हैं। ठीक है, तो हम सभी लोग डॉक्टर साहब का तालियों से स्वागत करेंगे। देखिए, जैसा कि हमने बताया है कि देखिए जो एक शिक्षक होता है, ठीक है, वो अपने बच्चों के प्रति कितना कर्तव्यवान होता है। सर के पास टाइम बिल्कुल नहीं था, लेकिन जैसे ही मतलब डॉक्टर साहब को बताया गया कि आप थोड़ा समय निकालिए हम लोगों के लिए, तो उन्होंने अपने बच्चों के लिए समय निकाला, और वो कुछ ही समय में आप लोगों के बीच में उपस्थित होंगे और आप लोगों को अपने विचार प्रकट करेंगे। उनको बहुत ही शालीनता से सुनिए। मैं संदीप सर को इनवाइट करना चाह रहा हूं कि वो सर के बारे में 2 शब्द बोलें। देखिए बच्चों, आज हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं शिक्षक दिवस के अवसर पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आपके मैथ्स टीचर हैं और मैथमेटिक्स आपको पढ़ाते हैं। ऐसे ही बच्चों, कानपुर में जब मैं आया 2008 में, तो आपके सामने जो हमारे मुख्य अतिथि महोदय हैं, हमारे सर डॉक्टर मुकेश सिंह, इनके सानिध्य से ही मैंने आज बीएससी, एमएससी और आगे जो मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग की है, सर का ही आशीर्वाद रहा है। तो बच्चों, सर न केवल यहाँ प्राचार्य जबकि अपनी स्टूडेंट लाइफ में गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के टॉपर, और यहाँ तक कि बीएससी, एमएससी में जो हम लोग बुक की स्टडी करते हैं, अभी आप लोग भी बड़े होकर आगे बढ़ोगे, तो उन बुक के पब्लिशर भी सर हैं। तो मैं तो बहुत बड़ा सौभाग्यशाली समझूंगा कि आज शिक्षक दिवस के मौके पर हमें हमारे सर का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। बच्चों, बहुत अच्छा लगा मुझे, आज सर ने टाइम दिया है। अभी यूनिवर्सिटी से आए हुए सर थके हुए हैं और अभी फिर जाना है सर को कहीं। तो बच्चों, आप इसी बीच में अपने छोटे छोटे जो कार्यक्रम आप लोग प्रस्तुत कर रहे हैं, बहुत अच्छे कार्यक्रम हैं, और इन्हीं कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए ये बच्चों आज हम सबके बीच में उपस्थित, जिनका हम लोग काफी देर से इंतजार कर रहे थे, अब कार्यक्रम के अंतिम समय में हम अपने जिनका मार्गदर्शन प्राप्त करना है हम सभी को, और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय माननीय श्री डॉक्टर मुकेश सिंह सर को मैं आमंत्रित करूंगा कि सर कुछ बच्चों को आशीर्वाद प्रदान करें। और 2 लाइन में बोलूंगा कि ईश्वर का दिया कभी अंत नहीं होता, ईश्वर का दिया कभी अंत नहीं होता, टूट जाए वो संतोष नहीं होता। हार को उस जीत से दूर नहीं रखना, हार को उस जीत से दूर नहीं रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होगा। और आज शिक्षक दिवस पर कार्यक्रम के अंत में हमारे मुख्य अतिथि महोदय सर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि बच्चों को सर आशीर्वाद प्रदान करें। हमारे सर डॉक्टर राधा सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नमन करते हुए इस मेगा मार्ट ट्यूटोरियल के सभी हमारे सम्मानित शिक्षक बंधुओं और इस शिक्षक दिवस पर हमारे इस ट्यूटोरियल के सभी होनहार छात्र और छात्राओं जिनका बेहतरीन कार्यक्रम मैं देख रहा था और मुझे बहुत ही खुशी का अनुभव हुआ। एक बेहतरीन शिक्षक और छात्रों के बीच में एक रिलेशन, एक जो है जो भारतीय संस्कृति का एक परिचायक है, उसको देखने को मिल रहा था। निश्चित रूप से किसी भी छात्र और छात्राएं के विकास के डेवलपमेंट के लिए, उन्नति के लिए टीचर का बहुत बड़ा योगदान होता है। लेकिन मैं दूसरे भाषा में कहता हूँ, टीचर तब तक संपूर्ण नहीं होगा जब उसके प्यारे बच्चे उनसे कनेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि फलक के चांद सितारे फलक हमसे कुछ सीखने की तमन्ना रखते हैं, लेकिन हमें मंजूर नहीं, क्योंकि हमें अपने बच्चों से रोशनी मिलती है, हमें बच्चों से रोशनी मिलती है। एक भारतीय, चूँकि मेरा बचपन याद आ रहा है, चूँकि मैं विगत 20 ईयर से हायर एजुकेशन फील्ड में रहा, लेकिन ये छोटे बच्चों के सामने अपनी भाषा को क्या कहूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि पूरी इंडियन कल्चर,
भारत पूरे विश्व में अगर शिक्षक और स्टूडेंट्स का रिलेशन का जो सबसे महत्वपूर्ण जो होता है योगदान, वो भारतीय संस्कृति को देखा। चाहे कि वैदिक काल से लेकर के, अगर चंद्रगुप्त नहीं होता जब उसके गुरु चाणक्य नहीं होते, विवेकानंद नहीं होते जब उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस नहीं होते, शिवाजी नहीं होते जब उनके गुरु रामदास नहीं होते। तो ये गुरु और शिष्य की जो परंपरा जो पूरी भारत की दिशा काल को बदलती है, पूरे भारत के स्वरूप को बदलता है। कोई भी सक्सेसफुल पुरुष, चाहे मैं हूँ, मैं आज थोड़ा सा जब स्वतंत्र भारत हुआ तो बच्चों मैं बताना चाहता हूँ कि जब हम अंग्रेजी हुकूमत से बाहर निकले, जब हमारा आज़ाद हुआ तो उसमें भारत की जो जनसंख्या थी 33 करोड़ थी, जो आज उत्तर प्रदेश में लगभग 40 विश्वविद्यालय लगभग है, और उस समय मात्र उस 33 करोड़ जनसंख्या को संभालने के लिए विश्वविद्यालय मात्र जो है 20 विश्वविद्यालय थे। उसमें एक 40 वर्ष तक एक शिक्षाविद जो है छात्रों के बीच में रह करके उत्कृष्ट शिक्षण कार्य करके जब ये प्रश्न वो उठा कि भारतीय शिक्षा प्रणाली को किस तरह ले जाए, ये प्रश्न उठा, तो वो जननायक थे, वो हमारी शिक्षा के दूत थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आप जो भी एजुकेशन सिस्टम है, बहुत सारे एजुकेशन पॉलिसी आए, लेकिन जो भी आप जाओगे, चाहे यूजी हो, चाहे पीएचडी हो, चाहे पीजी हो, सब उन्हीं का देन है, उन्हीं का क्लासिफिकेशन किया हुआ है। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन निश्चित और निश्चित रूप से और भारत के हम उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के रूप में नहीं देखते। हमने तो हमारी जो सदियों से जो शिक्षक और स्टूडेंट्स का जो रिलेशन होता था, वो उसको कैसे मूल्य को निर्धारित किया जाए, कैसे बच्चों में वो चरित्र का निर्माण किया जाए जिससे भारत विश्व गुरु बन सकता है। भारत विश्व गुरु बनने, बार बार कहा जाता है, भारत विश्व गुरु बनने के लिए अग्रसर है, और विश्व गुरु तभी बन सकता है जब एक सर्वश्रेष्ठ शिक्षक जो है हमारे बीच हो। और सर्वश्रेष्ठ शिक्षक कब हो सकता है? जब सर्वश्रेष्ठ जो है स्टूडेंट्स हो। तो अंत में मैं क्या कहूँ, स्टूडेंट से मैं यही कहता हूँ कि अगर आपको प्रगति करना है, अगर आपको ऊंचाई पे जाना है, तो निश्चित और निश्चित रूप से आप गुरु के चरणों में अपना जो है मन से ही रखिए, उनका आशीर्वाद वचन लीजिए। निश्चित और निश्चित कोई भी सफल व्यक्ति बिना अपने गुरु के सानिध्य से नहीं हो सकता। थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है हमारी एजुकेशन पॉलिसी में। अगर सबसे जो प्यारा चीज़ जो है, जो गुरु हुआ था, निश्चित और निश्चित रूप से आने वाले समय में बदलता है। आज हमारा समय जो है, सबसे ज़्यादा समय छात्र जो है हमारा मोबाइल ले लिया, व्हाट्सएप ले लिया है, अब तो उसमें बहुत सारे रील ले लिया है, बहुत सारे बच्चे रील देखते रहते हैं, जो है कि नहीं। तो हमारे ये विध्वंसकारी जो शक्तियाँ हैं, निश्चित और निश्चित रूप से हमारे विकास में बाधा है। लेकिन सफलता तभी मिलेगी जब गुरु का सानिध्य हो, और ऐसे जो है सम्मानित गुरु आपके बीच में है, जो यहाँ पे छात्र छात्राओं ने इतना बेहतरीन कार्यक्रम प्रस्तुत किया। एक लग रहा था कि एक आपस में इन लोगों में एक बॉन्डिंग। तो हमारा हमेशा आपका आशीर्वाद वचन रहेगा, आप जिंदगी में जो है ऐसे ही प्रगति करते रहिए, क्योंकि चिरागों की लौ के सितारों की लौ तक बहुत दूर दूर तक रात होगी। हम हैं मुसाफिर, आप हैं मुसाफिर, फिर कहीं ना कहीं तो मुलाकात होगी। सबसे पहले हम लोग अपने अतिथियों को बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर हम लोगों के बीच उपस्थित हुए, और हमारे पेरेंट्स भी यहाँ पर कुछ उपस्थित हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार। और बच्चों ने जिस तरह से तैयारी की है, ये बहुत ही लाजवाब तैयारी है, क्योंकि क्लास 10th और क्लास 12th के बोर्ड्स के एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, और उसके बावजूद भी बच्चों ने अपना समय दिया। इसके लिए हम बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। देखिए, एक्चुअली में क्या होता है, हम लोग जब पैदा होते हैं तो हम लोगों के दिमाग में ठूस के भरा जाता है कि बेटा खूब पढ़ाई करो, और पढ़ाई करने के बाद एक अच्छी नौकरी मिले जिससे आपकी लाइफ सक्सेस हो। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर होती है? कुछ बच्चों की अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट होता है, लेकिन वो अपने जो परिवार के लोग हैं, जो उनके माता पिता हैं,
वो केवल पढ़ाई पे ही जोर देते हैं, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो टैलेंट है उस पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन हम बच्चों से ये बोलना चाहेंगे, देखिए माता पिता कभी भी गलत नहीं बोलते हैं, उस पर आप ध्यान दो, उस पर आप 100% करो, दो जो भी वो चाहते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर कुछ ऐसा टैलेंट है तो उस पर भी आप अपना काम जारी रखें। जो बच्चे डांस में अच्छा कर रहे हैं, जो बच्चे अपने सॉन्ग्स पे अच्छा कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो उसमें करियर बनाएं। आप अच्छी पढ़ाई करिए, अच्छी नौकरी लीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये आपका जो टैलेंट है ये कहीं न कहीं काम आता है। काम नहीं आता है तो कम से कम आपकी पहचान बनाता है। आज के समय में पहचान बनाना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग होते हैं जो करोड़पति हैं, अरबपति हैं, लेकिन उनकी कोई पहचान नहीं है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो रोडपति हैं, उनकी बहुत बड़ी पहचान है, क्योंकि वो लोगों के बीच में अपने टैलेंट को शो कर चुके हैं। तो देखिए, लाइफ में पैसा ही जरूरी नहीं है। अगर आपको लोग जानते नहीं हैं, अगर आपके आसपास के लोग नहीं जानते, आप कितने भी करोड़पति रहो, कितने भी लखपति रहो, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। मेरा अपना थॉट्स है, ठीक है। अलग अलग लोगों के अलग अलग थॉट्स होते हैं। आज मैं अपने थॉट्स को आप लोगों के समझ प्रस्तुत रख रहा हूँ। तो देखिए, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। सभी हमारे शिक्षकगण, आप लोगों को, आपके जो फादर्स हैं, मम्मी पापा हैं, सभी लोग कहते हैं बहुत जरूरी, क्योंकि ये आपका एक फाउंडेशन है। अगर ये आपका फाउंडेशन कमज़ोर रहेगा तो आप लाइफ में कितना भी अच्छा टैलेंट रखते हो, कुछ भी रखते हो, लेकिन आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे। तो देखिए, आज ज़्यादा समय हो रहा है, लेकिन फिर भी क्योंकि जब मैं थोड़ा बोलना स्टार्ट करता हूँ थोड़ा समय लग जाता है, क्योंकि मैं बच्चों को कुछ न कुछ अच्छी चीज़ें देना चाहता हूँ। कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर बातें करते हैं, कुछ बच्चों के दिमाग में रहता है कि सर तो बातें करते हैं, उनको ये नहीं मालूम है इन्हीं बातों से पूरा, क्या बताएं आपको, इन्हीं बातों से पूरा आपका भविष्य निर्माण होता है। अगर आप बातों को गंभीरता से नहीं समझेंगे तो आप उन चीज़ों पे चिंतन नहीं करोगे, आपकी जो स्टडी है उसी तरीके से लगे रहोगे, तो क्या है कि जो जहाँ पर अभी आप हो तो कल भी वहीं पर आप होगे। अभी आपको क्या करना है, हम लोग जो भी हमारे अतिथिगण यहाँ पर उपस्थित हुए, उन्होंने देखिए वो कहाँ कितनी मेहनत की। हमारे जो प्रिंसिपल सर आए हुए वो कितनी मेहनत करके कैसे किस जगह पे रहे, और उनके पास में कोई सुविधाएं नहीं थी, उन सुविधाओं के बावजूद भी वो कितने स्तर पहुँचे। कानपुर में सर का नाम है, प्रिंसिपल हैं अपने स्कूल के, ठीक है, और वो आज हमारे यहाँ पर समय दिया। ये बहुत बड़े हम लोगों की बहुत बड़ा सौभाग्य है हम लोगों का कि हम लोगों के बीच उपस्थित हैं। इसी तरह से हमारे सुनील सर जो हैं, ठीक है, ये भी कितना पूरा ऑल ओवर कंट्री घूमे हुए हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ठीक है, वर्ल्ड रिकॉर्ड सर के पास में हैं और वो हमारे बीच उपस्थित हैं। ये भी बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। इसी तरह से हम लोग कौन बनेगा करोड़पति में केवल जाने का सपना देखते हैं, लेकिन एक ऐसी मैम जो हमारे बीच में उपस्थित हैं, प्रीति दीक्षित मैम, जो कौन बनेगा करोड़पति तक हो आई हैं, ठीक है। तो देखिए, ये भी हम लोग सब साधारण हैं, किसी के अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन क्या है, एक जुनून था, ठीक है, उनके अंदर कुछ नॉलेज थी, जिसकी वजह से उन्होंने उस पर अच्छा काम किया और वो लोग आगे बढ़ गए। तो मैं केवल आपको आज केवल 5 मिनट का समय थोड़ा और लेना चाहूँगा। मैं आपको केवल 6 चीज़ों पे थोड़ा हम फोकस करना चाहेंगे। जो 6 चीज़ें होती हैं वो क्या है कि उनको आपको दूर रखना है, यानी कि लाइफ में, स्टडी में आपके दुश्मन को आज हम पहचान कराएंगे। आपके 6 दुश्मन हैं, ठीक है। होता क्या है कि हम अपने दुश्मन को नहीं पहचानते हैं और हम अपनी स्टडी करते रहते हैं। अगर आपने उनको पहचान लिया और उस पर वर्क किया तो आपको आगे सक्सेस मिलेगी। देखिए, प्रोक्रेस्टिनेशन, किसी काम को टालना, ये स्टूडेंट की एक हैबिट होती है कि वो किसी काम, जो भी काम, जैसे कोई भी होमवर्क दिया गया उसको टालते रहते हैं। ये आपका दुश्मन नंबर 1 है,
अगर ये चीज़ आपके अंदर मौजूद है कि आप किसी बात को टालते हो, किसी काम को टालते हो, आप अपने होमवर्क करने को टालते हो, आज नहीं तो कल कर लेंगे, कल नहीं परसों हो जाएगा, इस तरह से क्या है कि आपका समय वेस्ट जा रहा है और ये आप जो भी आपका समय निकल चुका है वो कभी वापस नहीं आएगा और इस तरह से क्या है कि आप बिल्कुल पीछे चले जाओगे और जो आपने अपना गोल डिसाइड किया वो वहाँ तक आप कभी नहीं पहुँचोगे। तो ये आपका जो दुश्मन नंबर 1 है, इस पर आपको विजय प्राप्त करनी है। अगर लाइफ में कुछ सक्सेस प्राप्त करनी है तो इसको आप पहचान लो। आज मैंने आपको दुश्मन नंबर 1 के बारे में बता दिया। इसके बाद में आपका जो सेकंड दुश्मन कौन है? लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास की कमी। ठीक है, सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि हम लोग कर तो सकते हैं लेकिन हम लोगों के अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है। इसकी वजह से हम कोई भी काम नहीं कर पाते हैं, हमको डर लगता है। आप सॉन्ग्स तो अच्छा गा सकते हैं लेकिन क्या है कि स्टेज पर जब आप आएंगे तो आपको डर लगेगा कि नहीं, हो सकता है कि कुछ गलत हो जाए। तो क्या है कि आपको इस पर विजय प्राप्त करनी है। इसके लिए क्या है, आपको रिस्क लेना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप कोशिश करिए, आप स्टेज पर आइए और उसको आप अपनी एक्टिविटी को पूरा करिए। ठीक है, तो इसको भी आपको जो है निकालना है, इसके डर को आपको निकालना है। हमारा थर्ड है आपका जो दुश्मन नंबर 3 कौन है मालूम? इनको आप पहचानते जाइए। अगर आप नहीं पहचानोगे तो आपको हमेशा आप जहां पर हो वहीं पर रहोगे और नीचे गिरते जाओगे। आपका थर्ड है लैक ऑफ टारगेट एंड प्लानिंग। आप कोई भी गोल डिसाइड करते हो तो प्लानिंग नहीं करते हो। आपको क्या है कि अगर कोई भी गोल डिसाइड करते हो तो आपको प्री प्लान बनाना पड़ेगा। अगर आप प्लानिंग नहीं करते हो, प्लान कैसे बनाओगे? कोई भी गोल डिसाइड किया है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लो और एक पार्ट को अचीव करो, फिर सेकंड पार्ट को अचीव करो। इस तरह से क्या है कि जो भी आपने गोल डिसाइड किया है वहाँ तक आप उसको प्राप्त कर पाओगे। हमारा फोर्थ जो दुश्मन है उसका नाम है सोशल रिलेशंस। ठीक है, सोशल रिलेशंस में क्या है कि जैसे आपके बहुत से मित्र हैं, कुछ अच्छे हैं कुछ खराब हैं। आपको तो लगता है कि नहीं, ये हमारे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, इनके साथ में मुझे बात करना बहुत अच्छा लगता है। आपका टाइम कंज्यूम होता है। आपको क्या है कि प्रोडक्टिव आप फ्रेंड सर्किल बनानी है जहाँ से आपको कुछ न कुछ चीज़ें प्राप्त हों। अगर आपको लगा है कि नहीं, हम किसी दोस्त के साथ में बात कर रहे हैं, हमारा केवल टाइम स्पेंड हो रहा है, ठीक है, तो ऐसे दोस्तों से आपको दूरी बनानी है। तो आपके जो सोशल रिलेशन है उन पर भी आपको काम करना है। आपको देखना है कि कौन से लोग कैसे हैं और उनके बीच में हमें किस तरह से कितना समय देना है। इसके बाद में आपका जो 5 है, जो दुश्मन नंबर 5 है, वो आपका है फियर, आपका डर। ठीक है, हम लोग डरते रहते हैं। कोई भी नया काम करने से पहले हम सोचते हैं, 10 बार सोचेंगे, 50 बार सोचेंगे, फिर लास्ट में क्या है कि वहाँ तक हम करेंगे ही नहीं। आप तरह तरह की प्रॉब्लम्स निकाल दोगे कि अगर ये काम करेंगे इसमें ये रिस्क है, हमको ये दिक्कत होगी, वो दिक्कत होगी। ठीक है, तो इसकी वजह से आपके अंदर डर बैठा हुआ है, उस डर को आपको निकालना है। कोई भी अगर आपने प्लान किया, देखिए जब तक आप रिस्क नहीं लोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। रिस्क में क्या होगा, या तो लॉस होगा या गेन होगा। ठीक है, तो आप रिस्क लीजिए, जब रिस्क लोगे तो आप आगे बढ़ोगे। और नंबर 6 आपका जो है मीडिया डिस्ट्रक्शन। मीडिया डिस्ट्रक्शंस आज के समय में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। हमारा जब हमारी मॉर्निंग में सुबह जागते हैं तो सबसे पहले हम नोटिफिकेशन चेक करते हैं कि कौन से फ्रेंड्स का हमारा मैसेज आया है और यूट्यूब से कौन से नए वीडियोस डाले गए हैं। तो क्या है कि ये सब चीज़ों को आपको मतलब जो है बिल्कुल आप इन चीज़ों से दूरी बनाएं। अपने मोबाइल में नोटिफिकेशन को पूरी तरीके से बंद कर दें। अगर आप बंद नहीं करोगे तो क्या है कि वो आपको ड्राइव करेगा कि आपको क्या करना क्या नहीं करना, आपका माइंड नहीं काम करेगा। तो आप मीडिया डिस्ट्रक्शन से दूरी बनाइए। मेन चीज़ क्या है, देखिए आपको तो लगता है कि यूट्यूब हमको फ्री दे रहा है, व्हाट्सएप हमको फ्री दे रहा है, काफ़ी चीज़ें दे रहा है, लेकिन क्या है वो आपका समय ले रहा है, वो समय के पैसे कमा रहा है और आप क्या हैं, आप उनके प्रोडक्ट हैं, आपसे वो पैसे कमा रहा है। आपको क्या मिल रहा है भाई, आपको कुछ भी नहीं मिल पा रहा है, आपका समय भी जा रहा है। जो आपका समय पढ़ाई में जाना चाहिए था वो आपका जो है वीडियोज देखने में जा रहा है। ठीक है, तो इन चीज़ों पे आपको गौर करना है। मीडिया डिस्ट्रक्शंस को भी आपको ध्यान में रखना है कि अगर जो भी चीज़ें हैं बहुत ही लिमिटेड समय में करिए, जो भी आपको बेनिफिशियल हो, जो आपके स्टडी के लिए, उन पर आप काम करिए। तो देखिए बच्चों, हमने ये चीज़ें आपको इसलिए बताई हैं क्योंकि ये कमी हम लोग जानते हैं।
कि ये चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी हम उस पर वर्क नहीं करते हैं। जब तक आप वर्क नहीं करोगे, जब तक अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं अच्छा रखोगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। जहाँ पर हो वहीं पर आप बने रहोगे। तो देखिए, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। जो भी आपके पेरेंट्स ने गोल डिसाइड किए हैं, आपने गोल डिसाइड करिए, उनको आप अच्छे से अचीव करिए। और अंत में आप सभी बच्चों को हमारी तरफ से, हमारे जो भी अतिथिगण आए हुए हैं, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, हाँ सर, हमारे जो केमिस्ट्री के सर हैं, ठीक है, तो विवेक सर आइए और कुछ अपना जो है बच्चों के प्रति कुछ आभार प्रकट करिए। सर बताओ, मैं यहाँ पर बैठे हुए सभी महान अतिथि का एवं अपने शिक्षकगणों का आभार प्रकट करता हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ दी गई है। और सबसे पहले मैं अपने डियर स्टूडेंट्स को ये कहना चाहता हूँ कि जब आप कोई भी चीज़ पढ़ाई करते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे कहते हैं, सर मैं पढ़ता तो बहुत हूँ लेकिन मुझे याद नहीं होता है। सबकी कॉमन प्रॉब्लम। बहुत सारे स्टूडेंट, में जितने स्टूडेंट लोग पढ़ाऊँ तो सभी ने ये प्रॉब्लम ज़रूर मुझसे कही है कि सर पढ़ता तो मैं बहुत हूँ आपके कहने पर याद नहीं होता। तो मैं अपने बच्चों से एक छोटी सी ट्रिक कहना चाहता हूँ कि जब आप पढ़ते हैं या कोई टीचर क्लास में आपको पढ़ाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ 12 घंटे ही आपके दिमाग में रहता है। सिर्फ 12 घंटे आपके दिमाग में रहता है कोई भी टीचर जब आपको पढ़ाता है। यदि एक 12 घंटे के बाद आपने दोबारा उसे रिवाइज नहीं किया तो वो आपके दिमाग से चला जाता है। अगर आप जो क्लास में पढ़ाया जाए वो केवल और केवल मात्र 15 मिनट ही आप दोबारा रिवाइज करने में दे दें तो मेरे ख्याल से वो टॉपिक आपके दिमाग से कभी नहीं जाएगा। हमारे जो माइंड का डिवीजन होता है 3 लेवल्स पे होता है, अल्फा, बीटा और गामा लेवल पर। और जब आप कोई टीचर आपको पढ़ाता है तो आपका लेक्चर अल्फा लेवल पे जाता है और जब आप उसका दोबारा रिवीजन करते हैं तो वो बीटा लेवल पे जाता है। और फिर उन्हीं चीजों को आप आंख बंद करके अपने माइंड में ही रिकॉल करिए, अपने ही माइंड में, तो वो गामा लेवल तक चला जाता है। और जहां से आपके गामा लेवल पे माइंड पे गया फिर वो चीज आपको भूलेगी नहीं। तो आपको अपने माइंड में वो चीजें रिकॉल करनी है। कोई भी केमिस्ट्री का फॉर्मूला हो या फिजिक्स का फॉर्मूला हो या कोई भी डेरिवेशन हो, मैकेनिज्म हो, आपको अपने माइंड में उसे रिकॉल करते रहना है। और दूसरी बात ये कि आप जो भी बनना चाहते हैं या जो भी आपका टारगेट हो या गोल हो तो हर टाइम उसके प्रति आपको जुनूनियत रखनी पड़ेगी। अगर जुनूनियत नहीं है तो आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। आप एक परफेक्ट टाइमिंग फॉलो करिए, ठीक है, अपने टाइम का यूटिलाइज कीजिए और हमेशा ये रखिए कि मुझे ये करना ही करना है, इसके अलावा दुनिया में कुछ है ही नहीं, मेरा कोई वजूद ही नहीं है। अगर मैंने ये नहीं पाया तो जुनूनियत रखिए अपने अंदर कि मैं ये कर सकता हूं और मैं ही कर सकता हूं और मुझे ये करना है। अगर ये चीज जुनूनियत आपके माइंड में पड़ रही है या आप अपने काम को अपनी पूर्णता सच्चाई से कर रहे हैं तो मैं कहता हूं 100% आपकी गोल को अचीव करने में कोई भी परेशानी, कोई भी दुविधा नहीं आएगी। आप अगर जुनूनियत नहीं लाएंगे, अपने गोल के प्रति सच्चाई ईमानदारी नहीं दिखाएंगे तो आप गोल भी नहीं कर सकते। अगर जुनूनियत आ गई तो आप टाइम मैनेजमेंट भी आ जाएगा, टाइम को फॉलो एवं उसका यूटिलाइज कैसे करना है, हर चीजें आपके माइंड में ऑटोमेटिकली आने लगेंगी। तो मेरे ख्याल से आप जो भी करना चाहते हैं उस गोल में किसकी जरूरत होती है, ओनली फॉर जुनूनियत की। जो जुनूनियत आप इंस्टाग्राम में रील देखने में लगाते हैं उस जुनूनियत को आपको कहां लगाना है, आपको अपने गोल में। तो जहां से आपके गोल में जुनूनियत आ गई वहां से आपके गोल पाने का पहला सफर शुरू हो जाता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। Thank you so much, sir. Now I would like to invite our chemistry teacher Shubham Gupta sir to speak few words. Wish you all a very happy Teachers Day. हमारे अतिथिगण मैम एंड योगेंद्र सर, हमारे डायरेक्टर सर एंड ऑल माय स्टूडेंट्स
विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी टीचर्स डे। टीचर्स डे तो कहने को सिर्फ टीचर्स डे है, बट ये टीचर्स डे स्टूडेंट्स के बिना इनकम्प्लीट है। आप लोगों ने जो परफॉर्मेंस दिखाई इतने कम टाइम में, उसके लिए आपके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। एक बार प्लीज़ क्लैपिंग कीजिए, अपने लिए, खुद के लिए क्लैपिंग कीजिए। और एक छोटी सी बात, जैसे सर ने बताया कि हम लोग डेफिनेटली हमें खुद से प्यार करना चाहिए, हमें अपने गोल के बारे में पहले सोचना चाहिए। किसी और चीज़ के बारे में सोचने से पहले हमें खुद की स्टडी और खुद के गोल और खुद के लक्ष्य के बारे में सोचना चाहिए। जब हम अपने बारे में सोचेंगे तभी हम सेकंड पर्सन, हम अपने मम्मी पापा जो हमारे लिए सपने देखते हैं, हमारे लिए ड्रीम देखते हैं, हम अपने लिए जो ड्रीम देखते हैं वो हम तभी अचीव कर पाएंगे जब हम अपने बारे में पहले सोचेंगे। और एक बात, तो एक इंसिडेंट मैं आपको बताऊं। जैसे अभी जब कोविड सीजन चल रहा था तो आपको पता है कि टीवी पर रामायण और महाभारत टेलीकास्ट किया गया। तो आई होप आपने देखा भी होगा, क्योंकि हम लोग घर पे ही थे, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने देखा होगा। आप चाहे रामायण को देखिए या महाभारत को देखिए, उसमें जो शिक्षक के प्रति, टीचर के प्रति जो सम्मान शो किया गया है, आप चाहे महाभारत में देखिए, चाहे कर्ण को देखिए। कर्ण अपने गुरु से उसको श्राप मिला, पता है आपको, अपने उसके गुरु ने श्राप दिया, लेकिन फिर भी उसका सम्मान अपने शिक्षक के प्रति बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। तो आज के टाइम पर खैर सिचुएशन थोड़ी बदल चुकी है, समय बहुत बदल चुका है। आज तो बहुत सारे टीचर स्टूडेंट्स को डांटते टाइम भी थोड़ा सा डरते हैं कि डांटना चाहिए भी कि नहीं डांटना चाहिए। तो मेरा कहना का बस मतलब इतना है कि आप कुछ भी हो जाए, आपके मम्मी पापा के बाद जो आपका भला सोचने वाला जो पर्सन है वो आपके टीचर्स ही हैं। टीचर आपके बारे में कुछ भी हो जाए, कभी भी आपके बारे में कुछ भी एक भी वर्ड आपके बारे में गलत नहीं सोचेंगे। आप भले ही उनके बारे में कोई भी थॉट रखें, वो आपके बारे में हमेशा ही अच्छा सोचते हैं, हमेशा ही आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, आपके भले के बारे में सोचते हैं, आप कैसे लाइफ में प्रोग्रेस करें। जब कहीं पर अगर कोई बच्चा गोल्ड मेडल जीतता है या कुछ अच्छा अचीव करता है, कोई अच्छी पोस्ट पर जाता है, तो सबसे ज़्यादा जो खुश होता है मम्मी पापा के बाद वो उसका टीचर ही होता है। उसे बहुत गर्व होता है कि उसे ये बताने में कि ये जो आज बच्चा यहाँ पर सिलेक्ट हुआ है, ही वॉज माई स्टूडेंट। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर जो सारे बच्चे प्रेजेंट हैं वो यहाँ पर जो भी बात उनको बताई गई है वो उन्हें समझेंगे और उसे अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करेंगे और अपने गोल को पहचानेंगे, अपने जो भी सपने हैं, ड्रीम हैं, उसकी तरफ वो लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी टीचर्स डे अगेन। Thank you so much, sir. Now I would request our assistant teacher Shashank sir to speak few words. सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई। उपस्थित हमारे जो भी शिक्षकगण हैं, विद्यार्थी हैं, इन सभी को शिक्षक दिवस की बधाई। तो शिक्षक दिवस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, सभी को कुछ ना कुछ बनना होता है, लेकिन कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है। 10 में से कोई एक व्यक्ति ऐसा होगा जो बोलता है मैं शिक्षक बनना चाहता हूँ या मैं टीचर बनना चाहता हूँ। तो एक बार एक बच्चा जो है वो मुझसे मिला, उसने मुझसे कहा कि सर मैं एक टीचर बनना चाहता हूँ। तो मैंने उससे पूछा कि तुम टीचर क्यों बनना चाहते हो? तो उसने बोला सर आप मुझे एक चांस दीजिए, मैं आपको ये साबित करके दिखाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। तो उसने मुझसे बोला कि क्लास का उसने क्लास का मतलब 1 घंटे की पूरी क्लास एक तरीके से संभाली, सारी चीज़ें उसने वर्क किया। फिर मैंने उसको इवैल्यूएट किया, फिर उसने मुझसे पूछा कि सर मैंने कैसा परफॉर्मेंस किया। तो मैंने बोला कि तुमसे अच्छा जो बच्चा है वो राकेश जो है तुमसे अच्छा टीचर है। तो उसने मुझसे सवाल किया कि सर ऐसा क्यों? तो मैंने उससे कहा कि अगर तुम विद्यालय के बाहर या कोचिंग के बाहर एक गरीब के बच्चे या एक कुम्हार के बच्चे को पढ़ा करके दिखाओ तो मैं इस चीज़ को मानूं। तो उसने 1 महीने तक क्या किया कि परमानेंटली उसको टीच किया, उसके साथ वर्क किया। फिर उसके बाद उसने ये चीज़ बोली कि सर कुम्हार के पास सर इतना समय नहीं है कि वो मेरी ये चीज़ें सीखे। तो बोला लेकिन सर मैं उसको नहीं पढ़ा पाया। तो मैंने बोला कि जो दूसरा बच्चा राकेश था, मैंने कहा उसको भी नहीं पढ़ा पाया। तो उसने कहा सर वो मुझसे बेस्ट कैसे? तो मैंने कहा कि वह कम से कम जब 1 महीने बाद आया था
तो भले ही वो उस बच्चे को नहीं पढ़ा पाया, लेकिन उसने कुम्हार से एक घड़ा बनाना सीख लिया था। तो शिक्षक का मतलब वह नहीं है जो सिर्फ सिखाता है, शिक्षक का मतलब वह है कि वह अपनी जर्नी में सीखता भी है। तो लर्निंग प्रोसेस जो है परमानेंट चलता रहता है, इसी को शिक्षा कहते हैं। और जो हमारे बच्चे हैं इन्हीं सब चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। तो मुझे यह उम्मीद है कि इस स्टोरी के माध्यम से आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी सभी को शिक्षक दिवस की बधाई, और मैं अपनी वाणी को शांत करना चाहूँगा। धन्यवाद। हमारे बीच में एक छात्र हमारा जो सर पद्मपत सिंघानिया में पढ़ता था, 10th क्लास का हमारा स्टूडेंट्स आदित्य, उससे मैं अपने सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि तीनों सरों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आदित्य इधर आ जाएं। और ये छात्र हमारे इतना अच्छा छात्र है, बच्चों इसकी ओवरऑल 95 पॉइंट कुछ समथिंग परसेंटेज आए हैं। और ये सर पद्मपत सिंघानिया आप सभी लोग जानते हैं विद्यालय का छात्र है। और दो छात्र और थे हमारे डीपीएस के, वो आने में कुछ असमर्थ रहे, लेकिन नए छात्र उपस्थित हैं। तो मैं आप सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको अपने हाथों से सील प्रदान करें। और बच्चों आप लोग भी, मुझे पता है हमारे क्लास में जो बच्चे बैठे हुए हैं बहुत होनहार छात्र हैं, और ये बच्चे भी रिकॉर्ड कायम करेंगे। इस बच्चे ने 95% लाया है और मैथमेटिक्स में भी अच्छा स्टूडेंट हमारा है, ये 11th में गया है। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सर से कि इसको सम्मानित करें। सर हमारे जाइए सर, फोटो ले लीजिए सर, सुनो सर लीजिए फोटो, या बच्चों तुम्हारे पास कैमरा है ना, अच्छा एक फोटो ले लो इसकी। Here we come to an end of our performances, but before that I would like to thank everyone present here and giving their precious and valuable time to us. I hope all of you liked our performances as we left no stone unturned to please you all. Thank you. माई ट्यूटोरियल की तरफ से आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आपको लगता है कि नहीं है ठीक, मैं नहीं, तो जो भी काम करें आप दिल लगा के काम करें, मन लगा के काम करें, तभी आप लाइफ में सक्सेस पा सकेंगे। थैंक यू।